Good morning students. Welcome to मुंजाल्स फिजिक्स क्लासेस। ये मेरा सेकंड वीडियो है आपके लिए एंड इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द टॉपिक इज कूलम्स लॉ। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कूलम्स लॉ के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं वो सारे वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो सेम वैसे ही मिलता जुलता टॉपिक है कूलम्स लॉ। सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 and Q2 and R is the distance between them. Then force of interaction. Here I am using the word interaction. If the charges are like, then they repel each other. If charges are unlike, they attract each other. The common name is force of interaction. Force of interaction between two charges. Force of interaction between two charges is directly proportional to product of magnitude of their charges. Here I am saying product of magnitude of their charges. मतलब if minus Q2 is given, then we will not write minus Q2. We will take magnitude of the charge. So force is directly proportional to product of magnitude of two charges. And force is inversely proportional to square of distance between them. So force directly proportional to product of magnitude of two charges and force inversely proportional to square of distance between them. तो एक बार क्वेश्चन ऐसा हुआ था बोर्ड में, you have to plot the graph between f and 1 upon r square. The graph is given. If you plot the graph between force and 1 upon r square, then f is directly proportional to 1 upon r square. So hence graph should be straight line. So I am saying the graph between f and 1 upon r square, not r. ध्यान रखना. On combining f directly proportional to q1 q2 upon r square. And f is equal to k q1 q2 by r square. Here k is called constant of proportionality. तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा कॉलम सा का, f is equal to k q1 q2 by r square and k is the constant of proportionality. And the value of k will be 1 by 4 pi epsilon naught. Here again I am writing f is equal to k q1 q2 upon r square and the value of k is 1 upon 4 pi epsilon naught. Here I am c बना के कट करना है. This is called epsilon. क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन. और यहाँ जीरो लगा दो तो क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नोट. दिस इज अ सिंबल फॉर एप्सिलॉन नोट. तो ये ई नहीं है, दिस इज एप्सिलॉन नोट. एंड एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर. Here I am using the term permittivity. परमिटिविटी नाम से ही बनता है. परमिटिविटी का मतलब है परमिट करना. फ्री स्पेस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट करेगा, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. कोई मीडियम अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा, दैट इज मेजर्ड बाय द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ध्यान रखो कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है. परमिटिविटी वर्ड बना है परमिट करने से, कि समथिंग इज परमिटेड बाय द मीडियम, और वो समथिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो
एफ की वैल्यू बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर and the value of k is 1/4 pi epsilon naught. This will be in MKS system. I am talking about MKS system. And epsilon naught will become 1/4 pi f Q1 Q2 upon r square. Unit of permittivity. या यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एनी मीडियम. Here are Q1 Q2 charges. The unit is coulomb square, force Newton -1, r square meter -2. The unit of permittivity is coulomb square, Newton -1, meter -2. And the value of permittivity for air or for free space is 8.85 10 power -12 coulomb square Newton -1 meter -2. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और यू कैन से परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. द वैल्यू विल बी सेम 8.85 10 power -12 coulomb square Newton -1 meter -2. And the value of 1/4 pi epsilon naught comes out to be 9 into 10 power 9. If you want to write the unit, then coulomb -2 Newton meter square. You can write unit also. तो कूलम्स लॉ बन गया मेरे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by r square. These all are the formula for Coulomb's law in MKS system. तो Coulomb's law का सिंपल सा फॉर्मूला है K Q1 Q2 by r square and this is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. And the value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. So this is the Coulomb's law in MKS system. From this we will, and in CGS system, if I am talking about CGS system, the value of K is 1. Then F will become Q1 Q2 upon R square. सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू 1 होगी तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. और MKS में K की वैल्यू है 9 into 10 raised to power 9. Now we will define 1 coulomb. How can you define 1 coulomb? Coulomb is the unit of charge in MKS system. And the formula for force is 9 into 10 power 9 Q1 Q2 upon R square. From this, if F is equal to 9 into 10 power 9 Newton, R is 1 meter and Q1 Q2 both are same equal to Q. Now put these values. 9 into 10 power 9 9 into 10 power 9 Q square by 1 square. Q square is equal to 1 and Q is equal to plus minus 1. Here if Q is plus 1 then Q1 Q2 both are plus 1. If Q is minus 1 then Q1 Q2 both are minus 1. मतलब अगर दोनों प्लस 1 है तब भी रिपल्शन होगी बिटवीन दीज टू चार्जेस, दोनों -1 है तब भी रिपल्शन होगी बिटवीन Q1 एंड Q2. तो यहां से मुझे डिफाइन करना है 1 कूलम. तो यहां से देख के लिखूंगा मैं चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम. चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम if it repel the same charge with a force of 9 into 10 power 9 Newton separated by a distance of 1 meter in air.
तो हाउ कैन यू डिफाइन 1 कूलम? चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम if it repel the same charge with a force of 9 into 10 power 9 Newton separated by a distance of 1 meter in air. And similarly in CGS system, the unit of charge is stat coulomb, or you can say ESU of charge. एंड ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज. In CGS system, the unit of charge is called stat coulomb and second name is ESU, electrostatic unit of charge. And according to Coulomb's law, F is equal to Q1 Q2 by R square. In CGS system, if F is 1 dyne, R is 1 centimeter, Q1 Q2 both are equal. Now put values. 1 is equal to Q square upon 1 square, Q square 1, and Q is equal to plus minus 1 stat coulomb. So similarly we can define stat coulomb. Charge is said to be 1 stat coulomb if it repel the same charge with a force of 1 dyne separated by 1 centimeter in air or in vacuum. So in this way we can define coulomb and stat coulomb. And there is one relation between coulomb and stat coulomb. 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9 stat coulomb. तो डायरेक्ट आप रिलेशन याद रखो. 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9 stat coulomb. And one more unit is called EMU of charge. EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज. Electromagnetic unit of charge is equal to 10 coulomb is equal to 3 into 10 power 10 stat coulomb. This is one more unit EMU. तो हमने पढ़ी है यूनिट ऑफ चार्ज कूलम इन MK सिस्टम, स्टैट कूलम और ESU in CGS system, and one more unit that is called EMU of charge, and one EMU of charge is called 10 coulomb. Now the next point is, if in physics, this is the most important point I am telling, if in physics force is negative, question आता है force is negative, what does it mean? What is the physical significance of negative force? कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर नेगेटिव फोर्स है तो उसका एक ही मतलब है, द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर. नेगेटिव फोर्स मीन्स अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव फोर्स का मतलब है रिपल्शन. इफ फोर्स इज पॉजिटिव देन सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव फोर्स मीन्स रिपल्सिव इन नेचर. In Coulomb's law, the formula is Q1 Q2 by R square. In numerical, suppose there are two charges are given, Q1 and Q2. Suppose one charge is negative. Numericals में मैंने बोला है कि we don't put any minus sign. अगर बाई चांस हमने पुट कर दिया then what will happen? अगर आपने नेगेटिव साइन पुट कर दिया तो फोर्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव. और नेगेटिव फोर्स इंडिकेट दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. इफ बोथ आर नेगेटिव देन पुट बोथ नेगेटिव साइंस, तो आंसर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट देयर इज रिपल्शन. नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर. तो नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्शन और पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्शन.
तो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 लेस देन 0. What is nature of force between two charges if product of Q1 Q2 less than 0? Product of Q1 Q2 less than 0 means negative. It means force will be negative or answer will be attractive force. If product of Q1 Q2 is more than 0, it means force will be positive and that represent repulsive nature. तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेगेटिव फोर्स का मतलब फोर्सेस इन्वॉल्व आर अट्रैक्टिव इन नेचर. और क्वेश्चन डायरेक्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इज लेस देन 0. तो लेस देन 0 मीन्स Q1 Q2 इज नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर. फोर्स विल बी नेगेटिव, इट शोज अट्रैक्शन. Next point is dielectric constant of a medium. Dielectric constant of a medium. This is called K. K is the symbol for dielectric constant. And dielectric constant of a medium is F naught upon F. F नोट का मतलब है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, और F का मतलब है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस. दो डिस्टेंस सेम अंडरस्टूड है. तो K इज इक्वल टू F नोट अपॉन F. तो F का फॉर्मूला बन जाएगा F नोट अपॉन K. Here K is called dielectric constant. Suppose for water the value of K is 81, then force in water is force in air upon 81. मतलब एयर से 81 टाइम्स वीक हो जाएगी फोर्स इफ द मीडियम इज वाटर. इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में हम लोग करते हैं सोल्ट एनालिसिस. सोल्ट एनालिसिस में सबसे पहला जो स्टेप होता है मेक एक्वस सॉल्यूशन. जब आप प्रैक्टिकल फाइल लिखोगे या टीचर आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो बोलेंगे टू मेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गिवन सॉल्ट या डिसॉल्व ए पिंच ऑफ सॉल्ट इन वाटर. नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो डिसॉल्व क्यों किया. तो डिसॉल्व करने से ऐसा क्या हुआ. तो डिसॉल्व करने से क्या होगा, सपोज मेरे पास कोई सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. अगर ये एयर में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन इज वेरी वेरी लार्ज. तो ये अलग अलग नहीं होंगे बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज. अगर मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में और वाटर हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, तो मतलब फोर्स इन वाटर विल बिकम 81 टाइम्स वीक. अगर फोर्स वीक होगी तो आयंस आसानी से सेपरेट हो जाएंगे, और आयंस का आसानी से सेपरेट होना ही का दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. कि आयंस इधर उधर मूव कर जाए तो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो डिसॉल्व करने का मेन मोटिव है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस विल बिकम वीक एंड मोशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस मोर इजिली. तो इसलिए हम लोग डिसॉल्व करते हैं सॉल्ट को वाटर के अंदर. अब वाटर में ही क्यों करते हैं, बाकी सॉल्वेंट भी तो है, सब में वीक होगी फोर्स, क्योंकि वाटर जो है वो सस्ता है, चीप है, फ्री में मिलता है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग वाटर. यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. वो केमिस्ट्री में आ जाएगा व्हाट आर द मेन रीजंस. बट जो बेसिक थ्योरी है फिजिक्स में कि फोर्स विल बिकम वीक, और फोर्स वीक होने से आयंस सेपरेट हो जाएंगे. आयंस सेपरेट होने से केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस मोर इजीली. तो फोर्स वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन 81.
k is equal to f naught upon f 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 by r square. Epsilon is called permittivity of the medium, and this will become epsilon upon epsilon naught, and this is called epsilon r, and epsilon r is called relative permittivity. क्या बोलते हैं इसको हम? relative permittivity of medium. तो next definition is relative permittivity of a medium is the ratio of permittivity of medium to permittivity of air. तो k will become f naught upon f, this will become epsilon upon epsilon naught, and this is called epsilon r. So this is the formula for dielectric constant. And one more question is, what is the permittivity of a medium whose dielectric constant is 1? जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है उसकी परमिटिविटी बतानी है आपको. तो k इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 गिवन, देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, एंड मीडियम इज एयर. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1. तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1. तो मेरे ख्याल आई थिंक आप सबको यहां तक क्लियर हो चुका होगा. तो मेन मोटिव मेरा वीडियो बनाने का ये है कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए. आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, सुनोगे, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूं इसी वीडियो में ही, ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूं वो यूं कहीं अच्छा सा लिखा हुआ मिल जाए. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्स लॉ. माय मेन मोटिव इज कि हमें पढ़ना है सिंपल टू डिफ़िकल्ट. तो जब सिंपल पढ़ते जाओगे तो आपको कब डिफ़िकल्ट पढ़ लोगे पता भी नहीं लगेगा. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्स लॉ. थैंक यू वेरी मच. आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए नोट्स को, और फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ. टिल देन टेक केयर, सेफ फ्रॉम कोरोना, स्टे इन योर होम. थैंक यू.